जो सब लोग खरीद रहे हैं वो सब लोग ही बेचने आएंगे कि विकेट पे खड़े रहने पे रन बनता है। विकेट पे खड़े से टेलमेंट क्या होता है कि भैया आपको दाम बढ़ रहा है, आपके इन्वेंट्री का भी दाम बढ़ रहा है, वो भी आपके प्रॉफिट में आ रहा है। आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश गौरव गोयल सर के साथ। ही इज मैनेजिंग आईसीआईसीआई मल्टी कैप फंड, मिड कैप फंड, फोकस फंड। इन सभी फंड्स की बेस्ट बात यह है कि ये टॉप क्वार्टाइल फंड्स में आने की ऑलमोस्ट हमेशा सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है लेजेंड से बातचीत के एपिसोड में। थैंक यू सो मच अनंत। सीधे चलते मुद्दे की बात पे, स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक सिलेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव क्या है। अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव व्हेन आई लुक एट द फंड is I focus a lot on incremental risk reward. Incremental risk reward मतलब okay, I'll explain that part. Incremental as in like no, don't over focus कि past में stock ने क्या return दिया है। यहाँ से incrementally आप risk adjusted return क्या बना सकते हो उस पे focus कर रहे हैं। Risk adjusted इसलिए बहुत important है कि कितना पैसा बनाया उससे ज़्यादा ये important है, are you able to sleep comfortably at the night? Are you buying stocks which if it falls you can buy more? So that is the thesis we run the fund with. Stock selection में large part of the portfolio is growth at reasonable price, which essentially means कि company compounding nature की होनी चाहिए and we are not willing to pay very high multiple. आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 साल पहले तक हमारे पोर्टफोलियो में काफी केमिकल स्टॉक थे। जब तक वो रीजनेबली वैल्यूड थे, once they crossed the limit and then we felt कि banking as a space is far better compared to chemical because you have small disappointment and large correction in the stock prices. So the best way to look at it कि boss to make that incremental return 10, 20, 30%, what is the risk that you are taking? And the more important part is that when you're looking at a compounding stock, what can go wrong? If you do that analysis and then you analyze that weightage should be not this about this point, or these are the stocks which will continuously compound and if it comes down you can buy more. So focus a lot more on that side. And one thing we do on a very regular basis in these 3 funds is to look for a 3-year return. Why 3-year return? That majority of the street is focused on few quarters ahead. You get a lot more insight, like a lot better picks if you focus on a longer horizon. Say for example, a company is losing money in putting up a business. Because of losing money, the way accounting standard works, your ROE on a reported basis will be lower. As a result of that, what will happen? A lot of people will move away from that, and the stock will also not only get penalized for losses, but also get penalized for the lower multiple also. And if you are confident that this business will turn around in the next 4 quarters, 6 quarters, and you have a horizon of 3 years, you tend to pick better stocks from a risk reward perspective. So not chasing momentum, but at the same time focusing on the fundamental wherein the risk reward is meaningfully better. So that is on the growth at reasonable price. The second part is the value with triggers. Value with triggers is essentially means that don't go for deep value when you are sure about the value but you don't know the trigger. So थोड़ा और experience करो। I'll explain to you. Value with triggers means, say for example, you know for sure that these are the 2-3 events which can play out, and the worst case scenario you will not lose money or lose very less, and the scenario plays out, you will make mega money. So when you go for the value side, look for a good balance sheet, good promoter, but going through temporary problem. And when things play out, you make disproportionate money. So a portfolio is constructed, say 70-80% around the compounding stories, which growth at reasonable price. Growth at reasonable price, and 15-25% on the value side. Why value side? Is that basically you don't miss out opportunity. So many of our peers focus a lot on the compounding stories. What happens as a result of that? You will have lot more opportunity on the value with some trigger, right? And why we purposefully avoid deep value space or value without trigger? Typically, we have seen in past, like it has some corporate governance issue, some balance sheet issue, which we don't want to take in our portfolio. Now, within the value with triggers, it helps a lot across market cycle. It's say if I'm here, I'm asking investor to invest for 3 to 5 years, and I do not know how will the global interest rate cycle will play out in the 3 to 5 years. It's very difficult to predict, right? You can have a 3-month view, but you cannot have a 3-year, 5-year view. And if you have a blend, what happens in cycle that the other part of the portfolio will deliver a very good experience. So having an open mind towards the segment you're
एंड कीप ऐसी जगह पे जिसमें सबका फोकस नहीं है वहां पे भी आपको कुछ मिल सकता है मजेदार। कुछ मिल सकता है मजेदार। और मेरा अनुभव पिछले 5 साल का ये है कि जो बड़ा रिटर्न आता है वो वैसी जगह से आता है जहां सब लोग फोकस नहीं कर रहे हैं उस समय। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मार्च में फार्मा में कोई फोकस नहीं कर रहा था तो वहां पे बड़ा पैसा बन गया। हाँ, तो बेसिकली मेरा कैसे सोचना है कि कोई अगर अपॉर्चुनिटी है जहां पर आपको मैनेजमेंट से कंफर्ट है, बैलेंस शीट से कंफर्ट है, पीएनएल में टेम्पररी इशू है, तो वो कंपनियां मिस मत करो। You can you can talk about FMCG company. There were huge number of memes on the social media. Stock cannot move beyond. I'm not supposed to discuss about the stock. सब समझ गए। So, but point is that back to back 2-3 good result, stock is not moving up. So there's a good case that the ignored space, a very good ROE, a good dividend payout policy. Don't miss it. Say what could happen in the worst? It could happen that you not make money, right? और यू मे अंडर परफॉर्म। बट वहाँ पे जो आपने कहा कि अपॉर्चुनिटी टू लूज मनी या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में आ जाता है हमारे। सो जब मैं ये बोलता हूँ कि इंक्रीमेंटल रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, इंक्रीमेंटल मतलब डोंट फोकस ऑन द पास्ट रिटर्न, बिकॉज क्या है कि स्टोरी तो वो कैप्चर हो गया कि वो स्टॉक आपने 100 रुपये का खरीदा था वो 400 रुपये हो गया, तो इसलिए वो अच्छा नहीं कि वो 4 गुना हो गया। अब आप 400 रुपये में खरीद रहे हो या मैं आज की वैल्यू देख लो, आज की वैल्यू देख लो। तो इंक्रीमेंटल रिस्क एडजस्टेड मतलब भाई ऐसी कंपनी में चले गए कि भैया या तो बहुत तेजी पर जाएगा बट टेल रिस्क बहुत ज्यादा है कि मतलब छोटा सा गलती हुआ तो यू वुड लूज डिस्प्रोपोर्शनेट मनी। सो आइडिया इज टू कैप्चर अपॉर्चुनिटीज instead of trying to hit sixes, focus on good single doubles which are less risky and make good return over a period। और बीच में छक्के मारने के मौके मिल जाएंगे। लूज बॉल आता है, अपने आप आता है। हाँ। और दूसरा चीज क्या होता है कि मतलब यू सी से एंड ऑफ द डे 2 पार्ट होता है, आपको मार्केट से बेटर स्कोर करना है, राइट, और आउट नहीं होना है। तो क्या है कि बिकॉज ऑफ अदर्स टेकिंग टू मच रिस्क, वो भी एक प्रॉब्लम उनके साथ हो जाता है, और आप रीजनेबल रिस्क लेकर रिटर्न के ऊपर फोकस करते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलता रहता है, रेगुलर मिलता रहता है। हर मार्केट में मैंने देखा है कि देर आर इग्नोर्ड वेरी वेरी गुड कंपनी। Only thing which is important that you should have focus on what is the event that will play out, that stock will come back into reckoning. So for example, that consumer stock or whatever we are discussing, it was available at a throughout evaluation even after good result. So what happens then, you see that people will track these results and eventually somebody will come after you and you will make money. The job is not very complex. It's not easy, but it's not complex. It's not easy, you have to overcome your sentimental biases, and therefore your investment processes works. मैं इसके लिए हमेशा बोलता हूँ यहाँ पे इन्वेस्टिंग ना बहुत सिंपल है, बट वो इजी टू डू नहीं है। आपको प्रोसेस सीखना पड़ेगा। एक बार आपने सीख लिया प्रोसेस तो फिर वो बहुत सिंपल हो जाएगी आपके लिए। तो बेसिकली इसमें मैं एक बहुत चीज़ें अपने बार बार अपने कलीग्स को बोलता रहता हूँ कि इफ यू बाई अ स्टॉक एंड इट फॉल्स बाय से 15-20%, would you be happy or would you be sad? If you are happy, it means you are getting more to buy at that price, at a better price. It means you are buying something good. So वो जब चीज रहता है कि मतलब गिरेगा तो और खरीदेंगे, वैसे ही कंपनी खरीदेगा। कि गिरेगा तो फिर हिम्मत नहीं करेगी खरीदने की, तो वैसी कंपनी छोड़ेगा भी नहीं। मतलब हमारे लिए स्पेशली जब हम कहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपको बिल्कुल लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाना है तो म्यूचुअल फंड बनाओ। सो हम अभी म्यूचुअल फंड के पर्सपेक्टिव से बात करें तो अगर मार्केट में क्रैश आ रहा है तो उस समय आपको मार्केट से भागना नहीं है, मार्केट में भाग लेना है एज एन अपॉर्चुनिटी लेते हुए, तभी वो इन्वेस्ट करो तुम। फेयर पॉइंट। एंड इनफैक्ट पोर्टफोलियो भी अलाइंड ऐसे होने चाहिए जो गिरने पे और खरीदे जा सके। सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं इंडिया में आज बैठा हूँ, मैंने यूएस की एक कंपनी में डाला जिसका सप्लाई चेन 15 कंट्रीज से आ रहा है, और यहाँ पे बैठे हमें कंफर्ट नहीं, और मैं यहाँ पे बैठा हूँ और सामने वाला मैंने यू कैन सी द बैंक की बिल्डिंग, मतलब उसमें इन्वेस्ट कर रखा, बैंक में इन्वेस्ट कर रखा। वी सी एवरीथिंग इज ओके, वैल्यूएशन गोज थ्रू साइकिल, बिजनेसेस गोज थ्रू साइकिल, गुड बिजनेसेस, बैड टाइम, गुड वैल्यूएशन, यू विल मेक लॉट टाइम टू हिट अ 6। हाँ, टाइम टू हिट अ 6। बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका पोर्टफोलियो अलाइंड है इस थिंकिंग से कि हमें बड़ा पैसा लूज नहीं करना है, तो क्या होगा, वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, कि बॉस मतलब आप जाकर टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म बिजनेस में जिसमें 2030 में भी पैसा बनेगा नहीं बनेगा उनको भी नहीं मालूम है, उसमें आप इन्वेस्ट करते हो 1/4 हो जाता है, तो 1/4 होने के बाद आप खरीद पा रहे हो? आंसर नहीं है तो फिर पहली बार ही क्यों लिया? सो थिंकिंग बहुत सिंपल है कि अगर स्टॉक नीचे आता है,
आप खरीदने की, ठीक है हर केस में नहीं होता है, कुछ केसेस में क्या होता है कि आपका थीसिस गलत चला जाता है एंड देन यू से कि बॉस यू आर आउट ऑफ इट, you agree that your market is bigger than you have gone wrong. But majority of the places that prices should not drive your behavior. In fact, it should be other way around. That your fundamentals should be, boss, ये कल तक 600 रुपए का था, आज 450 रुपए है, कुछ नहीं चेंज हुआ, बटन दबाने का समय आ गया है, तो वैसे सोचने का। तो अगर पोर्टफोलियो वैसे अलाइंड है तो इन्वेस्टर भी क्या है, जब नीचे आएगा, तो मैं आपको पहले एक बार टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म साइट पे बताया, प्लेटफॉर्म साइट पे आपने 2000 रुपए का शेयर खरीदा, वो 500 रुपया हो गया, आपका फंड मैनेजर ही नहीं खरीद रहा है, तो आपको दोबारा खरीदने का क्या फायदा, उसमें दोबारा पैसा डेवलप करने का क्या फायदा। अगर हम ऐसे स्टॉक खरीद रहे हैं कि भैया वो 500 से 400 आता है, हम और खरीदते हैं और आप हमें और पैसा डालते हो, तो क्या है कि ये डबल बेनिफिट आएगा, जिसका ओवर द लॉन्गर पीरियड आपको रिटर्न में काफी मजा आएगा। देखो, अगर आप मार्केट से जुड़े हुए होंगे ना, तो हर एक वर्ड को एक बार वापस से सुन लीजिएगा, आपको सब समझ आ जाएगा कि कहाँ पे किस चीज की बात हुई है। बिकॉज ऑफ कंप्लायंस वी कैन नॉट स्पीक आउट डायरेक्टली, बट आप समझ सकते हो, आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है, प्रोसेस समझना है। मैं अगर इनडायरेक्टली कोई हिंट भी है तो आपको उसको इलिस्ट्रेशन पर्पस, इलिस्ट्रेशन, इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। यहाँ पर कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एब्सोल्युटली। आइडिया ये है कि प्रोसेस एक्सप्लेन करने का, और एक कल्चर जो होता है कि कल्चर ऑफ इन्वेस्टिंग कैन नॉट बी मोमेंटम ड्रिवन, कैन नॉट बी इम्पल्स ड्रिवन, इट हैज टू बी वेरी थॉट थ्रू। करेक्शन पे आप और खरीद सकते हैं, ऐसे स्टॉक्स में, ऐसे पोर्टफोलियो में जो करेक्शन में और खरीद सकते हैं, उसकी तरफ जाना चाहिए। मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है, उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। पैसा तो मंदी में बनता है, इन शॉर्ट बड़ा पैसा अगर आपने मंदी में इन्वेस्ट किया हो तो तेजी आती तब बनता है। देखिए, मेरा मानना है कि विकेट पे खड़े रहने पे रन बनता है। विकेट पे खड़े, तो आपको ये नहीं मालूम कि जैसे अगर अब 3 साल 4 साल 5 साल पहले जाइए तो बहुत सारे पंडितों ने बोल दिया होगा मार्केट में मंदी है, यहाँ से मंदी, वहाँ से मंदी। लगातार बने रहिए और करेक्शन में इन्वेस्ट करते रहिए। अब सर आप ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, हमने ग्रोथ एट गुड प्राइस हमें बाय करना, हमें समझ आ गया, अब हमें पता कैसे चले कि ग्रोथ एट गुड प्राइस मिल रही है, उसके कोई 1 2 3 4 पैरामीटर्स? तो बहुत सिंपल है। देखिए, अगर पहली बात अंडरस्टैंड करिए ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ, एक कंपनी कैसे ग्रो कर सकती है, वो सही सेक्टर में हो, सेक्टर कैसा हो कि वो जीडीपी से, नॉमिनल जीडीपी से ज़्यादा ग्रो कर रहा हो। कंपनी क्या हो, सेक्टर से ज़्यादा ग्रो कर रही है, तो ये ग्रोथ कंपनी हो गई। तो बेसिकली बहुत सिंपल हो गया, सेक्टर मस्ट कंपाउंड फास्टर देन नॉमिनल जीडीपी, कंपनी मस्ट कंपाउंड फास्टर देन सेक्टर, तो उसको ग्रोथ कंपनी बोल सकते हैं। अब जैसे आपको पहले वाले पे लाते हैं कि विच आर द सेक्टर्स, एक इलस्ट्रेशन देते हैं कि जो फास्टर देन नॉमिनल जीडीपी ग्रो करते हैं। Like you can take example, for example, sectors which are under-penetrated. Air conditioner, for example, India penetration of AC is less than 9%. अगले 5 साल में if we reach 40-45% और 10 year में, the growth longevity of this sector can be very high because of the low penetration. So this sector will definitely grow faster than nominal GDP. Second example could be your experience related categories, when because our economy is reaching closer to $2,000 per capita, lot of experience categories benefit immensely because of higher disposable income. Now within that space, if you look at mall, multiplexes, theater, QSR, restaurants, you are seeing the growth rate. बहुत सिंपल है, बट आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। ये छोटी छोटी चीजें हैं कि यहाँ पर आएगा। तीसरा स्पेस क्या हो सकता है कि सेक्टर ग्रोइंग फास्टर से, बहुत सारे सेक्टर हैं जो इनको इन्फ्लेशन से फायदा होता है। जनरली हम सोचते हैं इन्फ्लेशन से नुकसान होगा, बट थिंक अबाउट इट, रिटेल ग्रोसरी दे बेनिफिट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, कि किराया उतना ही दे रहे थे कि जो आपने 12 रुपए किलो वाला आइटम लिया वो अभी 15 रुपए किलो है, तो उनका तो 3 रुपए किलो सेल बढ़ गया, कंजम्पशन तो कम हो नहीं जाएगा। तो इन्फ्लेशन से रिटेल ग्रोसरीज को फायदा होता है, रिटेल वैल्यूज एसेसरीज को और अपैरल्स को फायदा होता है। इंश्योरेंस एज ए सेक्टर को फायदा होता है कि आपके लाइफ इंश्योरेंस अगर 20 लाख रुपए एडिक्वेट था आज से 5 साल पहले, आज 1 करोड़ रुपए भी एडिक्वेट नहीं रहेगा। बिकॉज़ इन्फ्लेशन हो गया। अरे वाह, ये तो सोचा ही नहीं कभी। सो इंश्योरेंस एज ए सेक्टर यू बेनिफिट्स बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, सो दे विल ग्रो फास्टर देन नॉमिनल जीडीपी, प्रोवाइडेड ऑब्वियसली अंडर पेनिट्रेशन, अफोर्डेबिलिटी टू बाय, दोस पैरामीटर्स आर ट्रैक्ड. Other sector, when the inflation works or the sector grows faster than the nominal GDP, could be premiumization. जैसे ऑटो में क्या था कि लोग पहले छोटी गाड़ी लेते थे, बड़ी गाड़ी और बड़ी गाड़ी, और इंश्योरेंस है जहाँ पे पहले छोटा प्रीमियम वाला लेते थे और बड़ा. तो बेसिकली ये 4-5 एक तरीका है सोचने का कि विच आर द सेक्टर्स विच ग्रो फास्टर देन द नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट. नाउ विच आर द कंपनी विच ग्रो फास्टर देन द सेक्टर, उसको आइडेंटिफाई करने का बहुत सिंपल तरीका है. पहले एक चीज देख सकते हैं भैया, कौन कस्टमर को वैल्यू डिलीवर कर रहा है. It could be in form of better product,
बेटर प्राइसेस, सप्लाई चेन एफिशिएंसी। सप्लाई चेन मतलब आप राजस्थान में किसी किनारे बैठे हैं, जो बॉम्बे में माल मिल रहा है वही फ्रेशनेस आपको राजस्थान में मिल रही है, या वही फ्रेशनेस आपको यूपी में मिल रही है। तो दैट इज अ यूनिक प्रोपोजिशन। तो वो कंपनी अच्छा करेगी। आप देख लीजिए रिटेल ग्रोसरी कंपनीज जिन्होंने अच्छा किया है स्पेस में, क्या उनकी ग्रोथ आ रही है? कर रहे हैं ग्रो, मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। सेकेंड एस्पेक्ट कुड बी वेर यू हैव स्ट्रक्चरली वीक कंपटीशन, जो नॉन कंप्लायंट है, टेक सेवी नहीं है। तो अगर आप जाइए अपैरल रिटेलिंग में, दे आर कम्पीटिंग अगेंस्ट द मॉम एंड पॉप शॉप। ना वो डिजाइन मैच करा पाते हैं, ना प्राइसेस मैच करा पाते हैं, ना टेक्नोलॉजी से चर्न कर पाते हैं, कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो उनका मार्केट शेयर गेन कर रहा है। हाँ। थर्ड पार्ट कुड बी जहाँ पे एंट्री बैरियर बहुत बड़ा है। You can take example of telecom for say $40 billion is the minimum investment to start a telecom business in India. So market share is not decided. There are 2-3 players, they will have the entire market share. So limited point, sector growing faster than nominal GDP. ये सुनने में थोड़ा I understand, सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। नहीं, आपने बहुत इजी कर दिया है। मेरे को बड़ा मजा आ रहा है कि आप बहुत इजी करके बता रहे हो सारी चीजें। So sector being growing faster than nominal GDP and company growing faster than sector. तो ये एक एस्पेक्ट हो गया, ये एक बड़ा ये ग्रोथ हो गया। आपने पूछा ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस क्या हो गया, तो ये दो पार्ट को आप आपने ग्रोथ कंपनी तक पहुंच गया, अब रीजनेबल प्राइस ढूंढनी है। रीजनेबल प्राइस क्या होता है? देखिए थोड़ा सब्जेक्टिव है। वैल्यूएशन इज नॉट completely size, it is art also. High growth company, high ROE company can trade at slightly stretched valuation. हम लोग पर्टिकुलरली, मैं पर्सनली कैसे करता हूँ कि 3 साल में देखता हूँ कि ये कंपनी का अर्निंग कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। वो 3 साल में अगर मैं देखता हूँ कि मेरा X% रिटर्न बन सकता है विदाउट मीनिंगफुल री रेटिंग और देयर इज अ री रेटिंग इवेंट, सबको फैक्टर करके मैं कितना पैसा बना सकता हूँ, उसके हिसाब से फिर मैं अपना पोर्टफोलियो डिसीजन लेता रहता हूँ। तो रीजनेबल प्राइस is context of relativity also, but at the same time be very careful. Say for example, I will tell, say chemical as a sector. I was an analyst and tracking chemical in 2009, 10, 11. A large part of the profit today, or rather a decent part of the profit today, is coming from the commodity nature of the business. And if you start giving 40 multiple blindly to everything for the next 2-3 year earning growth, इसको वापस एक्सप्लेन कीजिए। Okay. पूरा डिटेल में। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। Okay, so एक कंपनी है जैसे आपकी आटा चक्की है। हाँ। आटा चक्की में आप गेहूं पीस के आटा बेचते हो। हाँ। हर समय आपके पास गेहूं आता रहता है। हाँ। लागत गेहूं की एक्स रहती है। हाँ। गेहूं का दाम 20% बढ़ गया, आपका जो पुराना इन्वेंट्री उसका बेनिफिट है, उसको हम कमोडिटी नेचर ऑफ बेनिफिट बोलते हैं। आपके वैल्यू एड का वो प्राइस बढ़ गया तो आपको फायदा हो गया। मेहनताना क्या है, जो पिसाई 3 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया थी वो थी। मल्टीपल क्या हो रहा है, बिकॉज कंटिन्यूसली प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं तो स्प्रेड अब नॉर्मली हाई है। ये लोग क्या सोचते हैं कि जो कल तक गेहूं की पिसाई का 5 रुपये मिल रहा था, आज 10 रुपये मिल रहा है और 10 को हम 40 का दे रहे हैं। ये 5 वाला हो सकता है 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये 3 रुपया 4 रुपये जो एक्स्ट्रा आ रहा है, ये इन्फ्लेशनरी ट्रेंड के कारण है और ये रिवर्स होता है एट सम स्टेज। ये चीज़ ना देखते हुए आप उसको मल्टीपल दिए जा रहे हैं, ग्रोथ, लॉन्जेविटी, ये सब आर्ग्यूमेंट पे थोड़ा इस पर क्वेश्चन रखने का। मैं केमिकल सेक्टर पे, प्रोस्पेक्ट पे निगेटिव नहीं हूँ। आई थिंक India has a very bright future in some of these sectors, but I would actually take you back कि सन 2000 से 2006 तक IT सेक्टर ने बहुत अच्छा किया था in physical businesses, but stock market में they did not. Infosys 25% की ग्रोथ दे रही थी और but एक पैसा रिटर्न नहीं बना था because entry part of valuation was so high. मैं ये बोल रहा हूँ केमिकल उतना महंगा भी नहीं है, but understand कि there are better places. Overheated spaces में one need to be very careful and one need to be on top of every detail कि बॉस मुझे पर्सनली ये धंधा समझ में आता है तब मैं ले रहा हूँ, नॉट बाय गोइंग बाय। वेरी इंटरेस्टिंग एनालॉजी, आपने बिल्कुल सही एग्जांपल से मजा आ गया कि 6 साल में कुछ पैसा नहीं बना था डिस्पाइट कंपनी डूइंग वेरी वेरी वेल, अमेजिंगली वेल। सो बेसिकली क्या है, कंपनियां अच्छी हैं, गुड पार्ट ऑफ द प्रॉफिट और सम ऑफ द प्रॉफिट इन सम कंपनीज इज अ कमोडिटी नेचर ऑफ बिजनेस व्हिच इज गेटिंग द टेल विंड व्हिच कैन कन्वर्ट इनटू हेडविंड एट सम स्टेज। अब इसको समझाइए। टेलविंड क्या होता है कि भैया आपको दाम बढ़ रहा है, आपके इन्वेंट्री का भी दाम बढ़ रहा है, वो भी आपके प्रॉफिट में आ रहा है, तो अभी अच्छा लग रहा है सब कुछ। जब उल्टा होगा तो उसका भी फर्क पड़ेगा। अभी ज्वेलरी बिजनेस 2014-15 में जब गोल्ड के प्राइसेस थोड़ा वोलेटाइल हुए थे, कैसे स्टॉक परफॉर्मेंस आप जाके देख लीजिए। तो ये क्या होता है कि व्हेन यू थिंक समथिंग इज कंप्लीटली सेक्युलर और कोई भी मल्टीपल आप दे सकते हो तो उसका एक कॉस्ट होता है। तो हमेशा जब मैं ये बोलता हूँ कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, आपने क्या पैसा दिया है
किसी चीज को खरीदने के लिए, वो चीज आप दिमाग में रखिए, उसको आप इग्नोर मत करिए। जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज बाइंग, it is not the right strategy. You are going with the herd. What will happen on the way down? The herd will you will be going with the herd. So जो सब लोग खरीद रहे हैं वो सब लोग ही बेचने आएंगे। तो मतलब अपने विवेक का सदुपयोग करिए और सर्च करते रहिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़। मार्केट बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देता है, थोड़ा नॉलेज चाहिए, रीडिंग करना पड़ेगा, आपको कंपनियों को बेहतर समझना पड़ेगा और डोंट गो विद द हर्ड बिकॉज और अदर प्रोफेशनल सर्विसेज हैं। मतलब इंडिया प्रॉब्ली वन ऑफ द लाइक अमंग द बेस्ट रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, विच इज़ एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट। तो उसके थ्रू आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं जहाँ पर प्रोफेशनल्स की सर्विसेज मिलती है। ऑब्वियसली आई हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन सेइंग व्हाट आई एम सेइंग, बट व्हाट आई मेंट बाय दैट कि don't chase a strategy that every rising stock you need to be participating, because on the way down you will also be participating in those stock. And unfortunate part ना अनंत होता क्या है कि allocation of capital happens highest at the peak, because the recency bias, पिछले 3 साल का रिटर्न्स अमेजिंग, तो वो उतना ही नुकसान पहुंचाता है। ऐसा मुझे लगता है कि आई होप दिस विल बी यूजफुल फॉर द पीपल। नहीं बिल्कुल सर, आपकी ये बिल्कुल बात से मैं पूरा सहमत हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी आपका, मैं आपको ट्रेडिंग के अगेंस्ट नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप डायरेक्ट स्टॉक मत करो, आप करो, बट आपका एटलीस्ट गोल बेस्ड पोर्टफोलियो होना चाहिए जो आपके गोल्स को एटलीस्ट मीट करवा दे। जो म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड जहाँ पे भी आपको समझ आए आप उससे रखो। और दूसरा है कि जो आपको समझ में आता है वो खरीदो। हाँ, अगर आप टेक्सटाइल के बिजनेस में आपको टेक्सटाइल समझ में आता है आप टेक्सटाइल खरीदो। आपको जो चीज नहीं समझ, भीड़ भाड़ में मत जाओ, भीड़ भाड़ में, बिकॉज काफी आपके मित्रों ने खरीदा है, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो सब बेचने भी सब आएंगे। हाँ, तो फिर आप यू हैव टू बी अहेड ऑफ देम टू मेक मनी। अमेजिंग। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि रिस्क मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इक्विटी में। लॉन्ग पीरियड में अगर आप वॉरेन बफेट से या किसी का भी जाके इतिहास देखिए तो आपको एक चीज़ बहुत कंसिस्टेंटली मिलेगी, दैट टिके रहना मार्केट में लंबे समय तक, वो दैट इज द एन इन द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन आर एंड द रिटर्न वर्सेस ड्यूरेशन। अगर आपने 200 बिप्स का एक्स्ट्रा रिटर्न बना लिया बट आप 5 साल में मार्केट से बाहर हो गए, वर्सेस आपने 200 बेसिस पॉइंट कम रिटर्न बनाया बट यू आर इन द गेम फॉर 30 years, द वेल्थ मेड विल बी मीनिंगफुली हायर। सो इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है। अभी हम बहुत सारे फेमस ट्रेडर्स की बात करें, जिम साइमंस, उनका 66% का हैंड्स डाउन रिटर्न है। ही इज द बेस्ट ट्रेडर, बट फिर भी वो कभी वॉरेन बफेट को बीट नहीं कर पाएंगे बिकॉज वेल्थ वाइज में, बिकॉज वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी, उनका पैसा एट अ रीजनेबल रेट 80 साल तक ग्रो किया है। अब चाहे आप कितना भी ले जाओ बट वो आप 80 साल कहाँ से लाओगे? Completely. That's what I was trying to say. The N versus R. R is the return, N is the duration period. तो फोकस लंबे समय तक बने रहिए, मार्केट में बने रहिए। बिकॉज ऐसी मस्ती मत कर लो कि मार्केट से बाहर हो जाओ। वो होता है कि साइकोलॉजिकली भी हो जाता है। When you lose lot of money, what happens? Go back in our own history, 2007-8, so many people moved away from market. To 1994, so many people moved away from market. And had they been in the market, imagine जो भी पोर्टफोलियो था वो छोड़ दिया होता, would have made very good money so far. Millions, trillions में भी है, we never know. We never know. So thinking यही है, बहुत सिंपल है। ऐसे चीज़ें खरीदो कि नीचे आए तो और खरीद सके। ऐसे पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करें जो आपको जहाँ पर रिस्क एडजस्टेड कंफर्ट हो, बिकॉज मेंटल कंफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्जेविटी, मेंटल पीस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। अमेजिंग सर, आई थिंक बहुत इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन रही। थैंक यू सो मच कि आप आए और इतना डिस्कशन किया, मजा आ गया। नो, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। आई होप दिस विल बी यूजफुल फॉर यू। अमेजिंग, मजा आ गया। आपको बहुत जल्दी वापस लाने वाले हैं। थैंक यू सो मच।